Hello class 11 students, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to this mathematics lecture. This is lecture number 16. As you already know, in lecture number 15 we began trigonometry 2. In trigonometry 2 we are covering trigonometric equations and inequations. So this is basically the second lecture of trigonometric equations and inequations. So we can call it a trigonometric equations and inequations part 2. As you all know, in part 1 of trigonometric equations and inequation, that was lecture number 15, we discussed three important terms of trigonometric equation. One was principal solution, the other was principal value, the third was general solution. If you remember, what was principal solution? Principal solution of a trigonometric equation was something like whatever the solution, it should lie between 0 to 2 pi. So in one cycle, or from 0 to 360 degree, whatever the angle which correspond to the roots of that trigonometric equation, that is going to be called as principal solution. Now for principal value, what we were doing, we were trying to look for the principal branch. If you remember, what was principal branch? Near to origin, where that particular trigonometric equation is, a trigonometric function is 1 1. If you remember, in sin x, the graph from minus pi by 2 say pi by 2 was completely 1 to 1 function. So we said for y is equal to sin x, or for trigonometric function like sin x, the principal branch is going to be minus pi by 2 to pi by 2, both side included. So whatever angle correspond to the solution, we are going to call that as principal value. And the third, what we talked about, was general solution. General solution means whenever we are trying to solve trigonometric equations, in left hand side you got a trigonometric function, in right hand side you got a corresponding constant. So wherever those two intersect, the intersection of both the curves, that point of intersection is going to be called solution. Since you know that trigonometric functions are periodic, so all the roots repeat itself after a certain period. For that, we generalized various solutions for sin x, cos x and tan x. So if you remember, the major highlights from the last class which you need to remember was, if anyone asks you what is sin x is equal to the solution of sin x is equal to sin alpha, so they can ask you three solutions about sin x is equal to sin alpha. One, they can ask you what is the principal solution of sin x is equal to sin alpha. So what you are going to say, all the values of x which satisfy this equation and lies between 0 to 2 pi, you are going to call that as principal solution. And basically, how many principal solution you can get maximum? You get maximum 2 solutions in 0 to 2 pi region, as you already have seen in the last class. If someone asks you what is the principal value of sin x is equal to sin alpha, then you will be getting only one answer, and that also from minus pi by 2 say pi by 2. And if someone asks you what is the general solution of sin x is equal to sin alpha, you are going to say x equals n pi plus minus 1 to the power n alpha. And what is alpha? Alpha, we try to keep it as a principal value, but even if it is not a principal value, if it is any angle, then also it is absolutely correct to say x is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. But it's always better to write our general solution in where alpha needs to be kept in as a principal value. मतलब अगर sin x और sin alpha की बात करें तो alpha should be from minus pi by 2 से pi by 2. So these three solutions we talked about. Sin x is equal to sin alpha. Same way we talked about cos x is equal to cos alpha. Again, in principal solution आपको देखना है 0 से 2 पाई में कौन कौन सी वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में, वो दोनों पॉइंट्स आपके हो जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको cos x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था, इफ यू रिमेंबर, तो आप जानते हो 0 से पाई तक, अगर आप cos x का फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो 0 से पाई तक ये 1 1 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये मेनी 1 है. अगर आप देखेंगे दोनों साइड, सिंस इट इज एन इवन फंक्शन, सो आप क्या कहेंगे, 0 से पाई ये 1 1 है. सो यू आर गोइंग टू कॉल द प्रिंसिपल ब्रांच फॉर cos x इज 0 टू पाई, 0 एंड पाई इंक्लूडेड. और आपसे कोई क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू होना चाहिए, राइट. उसी तरीके से cos x इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो 0 से 2 पाई जो भी आंसर्स आएंगे वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन. 0 से पाई जो भी आंसर आएंगे, वो 0 से पाई के बीच में जो भी आंसर आएंगे वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू. और जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है, सिंस इट इज एन इवन फंक्शन, तो एक
आपने देखा था कि cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा में एक सॉल्यूशन अल्फा है, तो दूसरा सॉल्यूशन माइनस अल्फा भी हो सकता है। और आपको पता है अल्फा 2n पाई से रिपीट करता है, तो आप कहते हैं 2n पाई प्लस अल्फा। और एट द सेम टाइम माइनस अल्फा भी 2n पाई से रिपीट करेगा, तो आप कह सकते हैं द अदर सॉल्यूशन इज 2n पाई माइनस अल्फा। दोनों को कंबाइन करके आप जनरल सॉल्यूशन क्या बोलते हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा नॉर्मली इट इज बेस्ट टू कीप इट एज अ प्रिंसिपल वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई। अगर वो नहीं है, कुछ भी वैल्यू है, तो भी ये जस्टिफाइड है। इनफैक्ट आप साइन कचड़ा इज इक्वल टू साइन कूड़ा और कॉस कचड़ा इज इक्वल टू कॉस कूड़ा को आप बिल्कुल साइन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, कचड़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n कूड़ा। और कॉस कचड़ा इज इक्वल टू कॉस कूड़ा में आप लिख सकते हो, कचड़ा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कूड़ा, बिकॉज वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अचानक से लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। Now coming to the third part, that was tan x is equal to tan alpha. tan x is equal to tan alpha की कहानी में आपको पता है कि आपने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता है 0 से 2 पाई के बीच में होगा। प्रिंसिपल वैल्यू इसका -π/2 से π/2 होगा, लेकिन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वहां पे tan x आपका डिफाइंड ही नहीं है, डोमेन में आता ही नहीं है। तो आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, तो प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2 बोथ एंड ओपन, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। एट द सेम टाइम आपसे कोई पूछे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हमने ऐसा क्यों कहा सीधे n पाई, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो tan x है वो पाई के पीरियड से फॉलो करता है, मतलब वो हर जैसे कि sin x और cos x अगर आपको फंक्शन याद हो तो उसका पीरियड क्या था, उसका पीरियड 2 पाई था। लेकिन y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो उसका पीरियड क्या था, पाई। तो आप सिंपल कह सकते हो कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो अल्फा आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस n पाई, मतलब अल्फा हर पाई पे रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या होगा, अल्फा -π/2 से π/2 कुछ भी हो सकता है, वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू होगा। एट द सेम टाइम tan कचड़ा इज इक्वल टू tan कूड़ा हो जाए तो भी क्या करना है, आप इसको लिख सकते हो कचड़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस कूड़ा, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो एज ए लीनियर इक्वेशन। ये तो बात की हमने sin x इक्वल टू sin अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा। उसके बाद हमने तीन और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पता की थी। वन वाज sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये तीनों का सेम जनरल सॉल्यूशन आया था। क्या था इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसकी हमने बहुत डिटेल में इसकी डेरिवेशन की थी, आई एम श्योर आप सबको आता होगा। तो आइए आज हम कुछ और कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रह गए हैं, उसको डिस्कस करने के बाद हम टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कितने वेरिएशंस हो सकते हैं और हर वेरिएशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ क्रिटिकल इक्वेशंस वैल्यूज होती हैं sin x और cos x की, जैसे sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू -1। उसी तरीके से cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू -1। ये सब कुछ बाउंड्री और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सिस को कट करती हुई चीज होती है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पे थोड़ा सा हमें जनरल सॉल्यूशन जो सारी चीजें होती हैं वो वैलिड है, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा कि बाउंड्री पे कुछ थोड़ा सा सिनारियो चेंज होता है। तो उस चीज को हम देखेंगे अभी इन सब इंपॉर्टेंट केसेस में जो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसा कि पहला मैंने क्या पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट sin x इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है कि sin x इज इक्वल टू 0 कहां पे होता है, आपने ऑलरेडी tan x का ग्राफ बनाया था तो डोमेन बताई थी, cot x का ग्राफ बनाया था तो डोमेन बनाई थी। डोमेन में आपने बताया था कि sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और sin x 0 कहां होता है, sin x 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है। तो आपको पता है कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पे sin x 0 हो जाता है। लेकिन सिंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि 0 से 2 पाई के बीच में 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई नॉट इंक्लूडेड है। 0 से प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब कहां से कहां तक देखना होता है, 0 से 2 पाई 0 इंक्लूड होता है, 2 पाई इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 से 2 पाई में आप देखोगे मैंने 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया है, व्हाइट बॉल्स पॉइंट से मैंने शो किया है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन दो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। सो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, 0 एंड पाई। ओके, तो आई एम श्योर आपको ये बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2। तो देखिए ब्लैक लाइन मैंने x इज इक्वल टू -π/2 है
और x इज इक्वल टू पाई बाई टू है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में जो रीजन है, दिस रीजन इज द रीजन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू फॉर साइन एक्स। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये ग्राफ क्या है, ये y इज इक्वल टू 1 है। तो दोनों कहाँ मिल रहा है, दोनों ओरिजिन पे मिल रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू 0 होगा। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 0 और पाई, और इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 0। आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंस आपको पता है ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है, ये माइनस 3 पाई है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को मैं सिंबॉलिकली कैसे लिख सकता हूं, n पाई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हमें sin x इज इक्वल टू 1 का भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका जो ब्लू कर्व है दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स, और रेड कर्व है दैट इज y इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में देख सकते हो दिस इज योर 0 लाइन एंड दिस इज योर x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर x इज इक्वल टू 2 पाई। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज हेयर, and this point is basically pi by 2. So if someone asks you what is the principal solution, you will say only one principal solution between 0 to 2 pi and that is pi by 2. तो आप ये देखिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 नहीं होता है, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस केस sin x इज इक्वल टू 1। इसको आप इस तरीके से मत कर देना कि पाई बाई 2 और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक और आंसर एक्स्ट्रा कर दो, क्योंकि आपको ये देखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज देयर बिटवीन 0 टू पाई, जिसको मैंने ब्लैक डॉट से यहाँ पे दिखा रखा है, दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओनली वन सॉल्यूशन। उसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये लाइन क्या है, ये है x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन दोनों पे अगर आप देखोगे तो सीधे पाई बाई 2 पे हिट कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सीधे बाउंड्री पे है। सिंस ये दोनों इंक्लूडेड है, पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, नाउ कमिंग टू द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आप एक चीज देख सकते हो, जनरल सॉल्यूशन में जो आपको सबसे अच्छी चीज है कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जहां जहां दोनों कर्व, ये लाइन आपको पता है दिस इज y इज इक्वल टू 1, और ये कर्व क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू साइन x। और आप जैसा कि देख रहे हो एक पाई बाई 2 पे कट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, पाई बाई 2 पे। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, आप देख सकते हो 2 पाई के प्लस पाई बाई 2 है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2 पाई की दूरी है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2 पाई की दूरी है। तो आप कह सकते हो एक 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है, और ये क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि पाई बाई 2 कितने पे रिपीट कर रहा है, 2 पाई पे, क्योंकि ये 0 से 2 पाई सिर्फ एक ही पॉइंट आता है। तो फिर दोबारा ये कब आएगा, नेक्स्ट 0 टू 2 पाई में, फिर नेक्स्ट 2 पाई के इंटरवल में, फिर नेक्स्ट 2 पाई के इंटरवल में। तो जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जनरल सॉल्यूशन में लिख सकता हूं पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मैं दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। इसको और अच्छे तरीके से लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाई बाई 2 कॉमन ले सकते हो। पाई बाई 2 कॉमन लोगे तो 2n क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4n प्लस 1। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1, तो आप कह सकते हो द जनरल सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो अगर आपसे कोई जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो आप बोलोगे x इक्वल्स 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ध्यान रखिएगा इसमें आप n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन x इज इक्वल टू 1 एक अलग स्पेशल केस है, क्योंकि 0 से 2 पाई में एक ही केस है जो साइन x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है। सो यू कैन गो अहेड विद द आंसर लाइक पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। तो आप उसको कैसे फॉर्मुलाइज करोगे, आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, राइट। तीसरी जो बाउंड्री पॉइंट है साइन x के लिए वो क्या है, वो है -1। तो आपको साइन x इज इक्वल टू -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन बताना है।
क्या क्या बताना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -1। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है 0 से 2 पाई। आप देख सकते हो दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू -1, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 2 पाई। इस दोनों के रीजन में दिस इज योर y इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है which is basically 3 pi by 2, which is going to be 3 pi by 2. So again the principal solution is 1, that is 3 pi by 2. X is equal to 3 pi by 2. So always remember sin x is equal to 1 और sin x is equal to -1 का principal solution एक ही है। Only one principal solution exists. Normally आप trigonometric equation में देखेंगे दो principal solution exist करता है 0 से 2 pi, अगर जितने भी simple आप equations की बात करें। प्रिंसिपल वैल्यू जैसा कि आपको पता है साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन दोनों में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस पॉइंट एज योर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो सिंस दिस बाउंड्री इज द सॉल्यूशन, सो आप क्या लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। सिमिलरली कम टू द जनरल सॉल्यूशन पार्ट। जैसा कि आपको पता है दिस इज x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, दिस इज x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ऐसे कहानी चलती रहेगी। तो आप इस पे भी देख सकते हो ये कहानी आपकी क्या हो रही है, 2n पाई से रिपीट कर रही है। तो जनरल सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, जिसमें आप पाई बाई 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 4n माइनस 1। तो आप क्या सकते हो कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू -1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया। सेम फैशन अगर cos x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू -1 का तीन कहानी पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? 0 से 2 पाई। तो आप देख सकते हो दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2 पाई, दिस इज y इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज y इज इक्वल टू 0। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ये दोनों पॉइंट क्या है? ये है पाई बाई 2 और ये क्या है? 3 पाई बाई 2। एक हो गया पाई बाई 2 और दूसरा हो गया 3 पाई बाई 2। सो यू आर गोइंग टू कॉल द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एज x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सिमिलरली प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई तक आप देख सकते हो आपका cos x ग्राफ जो है वो क्या है? 1 1 है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच। एट द सेम टाइम दिस इज योर y इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज y इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है which is nothing but what? This is pi by 2. So what you are going to call the principal value is going to be x equals pi by 2. आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन में आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जहां जहां पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे बात करेंगे। ये आपका y इज इक्वल टू cos x है, ये रेड लाइन आपका y इज इक्वल टू 1 है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर ये है। तो मैंने ब्लैक लाइन से ऑलरेडी शो कर रखा है। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये हो गया माइनस 3 पाई बाई 2, ये हो गया माइनस 5 पाई बाई 2। तो आप देखोगे सब में पाई बाई 2 है और जो नंबर्स हैं जो इसके साथ कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं पाई बाई 2 के साथ, दोज आर ऑड नंबर्स। सो वी कैन से इट इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, where 2n plus 1 is a odd integer. It could be positive, it could be negative. So इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 1। सो आई एम श्योर अब आपको पूरा आइडिया लग रहा है। cos x इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या करना है? cos x इक्वल टू 1 के लिए फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई देखेंगे। 0 से 2 पाई में आप देखेंगे दिस इज y इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज y इज इक्वल टू 1। ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 पाई इज इन, जो अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। 2 pi is not included, so the only solution included is x is equal to 0. So the principal solution is going to be x equals 0. Only one solution, right?
प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो अगेन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच आपको पता है 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई में आप देखोगे सिर्फ 0 है जो सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल, यू आर गोइंग टू कॉल x इज इक्वल टू 0 एज योर प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू पाई है। इन दोनों के बीच में दिस इज द रेड जोन एंड दिस इज द ब्लू जोन। ब्लू जोन इज cos x एंड रेड जोन इज y इज इक्वल टू 1। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जो आपको दिख रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0। आइए जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में अगर आप गौर से देखें, दिस इज, अब जनरल सॉल्यूशन में आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पाई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज x इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि पाई पे -1 होता है तो 2 पाई पे अगेन +1 होगा। और ये कहाँ है, ये देखिए कहाँ पे हो रहा है, ये x इज इक्वल टू -2 पाई पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आगे कहाँ रिपीट करेगा, 4 पाई पे, ये कहाँ रिपीट करेगा, -4 पाई पे। तो आप देख रहे हैं सब पाई के सामने क्या नंबर है, पाई के सामने एक इवन मल्टीपल्स है। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2n पाई। So this is the general solution of cos x is equal to 1. So anybody ask you what is the general solution of cos x is equal to 1, you are going to call it 2n pi. N could be any even integer. 0 is also considered as even integer. So ये 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, -2 pi, -4 pi, -6 pi, everything would become the part of the general solution of cos x is equals 1. Now the last one, principal solution, principal value and general solution of cos x equals -1. अब देखिए इतने सारे रिजल्ट्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इन सारी चीजों को रट के ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, सिर्फ व्हेन यू आर डिराइविंग इट, व्हेन यू आर रेगुलरली डूइंग इट, व्हेन यू आर रेगुलरली रिवाइजिंग इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू कीप दीज रिजल्ट्स इन योर हेड. So there is no point solving the problems if you don't know these results. So that is why my emphasis is totally on understanding the why part of mathematics, why we are doing it, what is the reason, what is the logic. Once why is clear, what is nothing, what is simple as an algorithm which you can easily solve. So it's not okay to solve problems without understanding the results. So first focus on understanding the results, and also the memorization of these results are extremely important. Don't ever think that memory doesn't play any role in mathematics. Memory plays hell lot of role in mathematics. So you need to remember these results, these formula in your head, and the only way to remember these formulas, these results in your head is by revising it, continuously focusing it, continuously deriving it. Whenever you are getting the time, always try to derive all the results and then solve. When you are solving the problems, then also don't try to look into the result, just try to derive the result and then apply. Okay, now the last one, cos x equals -1. This is the last result. Then we will be getting into the types of trigonometric equation. So again you have to the principal solution, principal value and general solution. Principal solution का मतलब क्या है, 0 से 2 pi. 0 से 2 pi में आपका कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप देख सकते हो, दिस इज y इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज y इज इक्वल टू -1, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2 पाई। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, एंड दैट इज पाई। तो आप कह सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज x इक्वल्स पाई। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट ये सब चीजें में क्या दिख रहा है कि बाउंड्री में आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही आ रहे हैं। अगेन अगर आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो आपको पता है प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है प्रिंसिपल ब्रांच। ये हो गया x इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे cos x का जो फंक्शन होता है वो 1 होता है। ये y इज इक्वल टू -1 है, ये y इज इक्वल टू cos x है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है दैट इज x इज इक्वल टू पाई एंड दैट इज ओनली द सॉल्यूशन। सो यू आर गोइंग टू से x इज इक्वल टू पाई इज द प्रिंसिपल वैल्यू एज वेल। Now coming to the general solution, again you have to understand general solution -infinity से +infinity, जहां जहां point of intersection हो रहे हैं वो सारे को आपको रिजल्ट निकाल के जनरलाइज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू cos x, दिस इज y इज इक्वल टू -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अगर मैं देखूं ये, तो ये है x इज इक्वल टू पाई, और मैं जानता हूं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 पाई है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 पाई है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया -पाई, ये हो गया -3 पाई। तो आप देख रहे हो कि x के साथ पाई है और पाई
x जो है वो पाई है और पाई के आगे कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, और वो जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो 1 3 5 7 9 है, दैट इज ऑड मल्टीपल्स। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स 2n प्लस 1 पाई। सो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल्स -1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द लेक्चर, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के डिफरेंट वेरिएशंस को देखने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स को देखने जा रहे हैं। कुछ टाइप्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। उस टाइप्स को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच क्या होगी, उसकी हम बात करेंगे। बट सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, नॉर्मल इक्वेशंस के लिए भी वैलिड हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो आप केयरलेसली कभी कभी गलती कर देते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन अवॉइड स्क्वायरिंग इट। इफ स्क्वायरिंग इज नेसेसरी ऑलवेज वेरीफाई योर सॉल्यूशन विद द ओरिजिनल इक्वेशन। देखो क्या होता है ना कि नॉर्मली कभी कभी हमारे को लगता है कि स्क्वायर करने से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो हमेशा झट से स्क्वायर करना इज नॉट अ वेरी वाइज वे और वाइज अप्रोच। क्योंकि जैसे ही आप झट से किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपने इक्वेशंस को नेक्स्ट डिग्री पे ले जाते हो। जैसे ही आप अपने इक्वेशन को नेक्स्ट डिग्री पे ले जाते हो, आपके सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो जैसे ऐड होते हैं ना, वो पार्ट ऑफ द आंसर बन जाते हैं। अब वो पार्ट ऑफ द आंसर बनने के बाद हो सकता है वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके वो पार्ट ना हो, इसलिए आपको स्क्वायर हमेशा अवॉइड करना है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी होता है कि सर द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज स्क्वायरिंग इट, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो व्हेनेवर सच केस अराइजेस व्हेन स्क्वायरिंग इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर यू, देन डू स्क्वायर, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन। लेकिन जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं उसको आपको जरूर वेरीफाई करना है ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के। ओरिजिनल इक्वेशन में आप प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फेयर इनफ, अगर नहीं कर रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दैट नीड्स टू बी रिजेक्टेड। सो इसलिए इतना झमेले में ना पड़ने से अच्छा है कि हमेशा कोशिश करें कि कोई ऑल्टरनेटिव मेथड मिले। अगर ऑल्टरनेटिव मेथड हमें नहीं मिल रहा है, स्क्वायरिंग इज द ओनली रिसोर्ट, तो अगर स्क्वायरिंग इज द लास्ट रिसोर्ट तो उसमें जाइए, स्क्वायर कीजिए। लेकिन मान लीजिए जितने भी सॉल्यूशंस आए, मान लीजिए आपके 4 सॉल्यूशन आए स्क्वायर करने से, तो वो चारों सॉल्यूशन को जरूर वेरीफाई कर लीजिए ओरिजिनल इक्वेशन में, बिना स्क्वायर किए हुए जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पुट करके कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। उसमें आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशंस आ गए हैं उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। डू नॉट कैंसिल अननोन टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। बच्चों को क्या आदत होता है, बच्चे अगर जब देखते हैं ना एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चे झट से काट देते हैं। बच्चे झट से क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से काट देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका एक सॉल्यूशन कम हो जाता है। कैसे? देखिए, काटने से क्या हो रहा है, आपने क्या किया, अगर आप इसको काट दिए हैं तो आपने बताया x इज इक्वल टू 1, द वन सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको काटेंगे नहीं, आप इसको इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, x माइनस 1, तो बेसिकली 2 सॉल्यूशन आ गया। एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी आपने काट दिया, वो आपको नहीं काटना था। आप समझ रहे हो, आपने सीधे क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया। उसी तरीके से साइन एक्स में आप जैसे देखोगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो आप क्या करोगे, आप झट से साइन एक्स काट दोगे और साइन एक्स कॉमन लेके काटने से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन ही आपने उड़ा दिया। तो इसलिए नेवर कैंसल अननोन टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। आपको कैंसल आउट, कट्टम कुट्टम करना बंद कर दो। अब क्या करो, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इक्वेशन का, आप पूरी चीजों को लेफ्ट साइड ले आओ या पूरी चीजों को राइट साइड ले जाओ, लेकिन क्रॉस काटो मत। क्रॉस काटना बिल्कुल भी नहीं है। ओनली डू द क्रॉस operation only when you know that those two numbers or those two variables are non-zero। अगर वो क्लियर है आपको कि वो दोनों वेरिएबल जिसको आप काट रहे हो वो जीरो नहीं हो सकता है कभी, तो आप काट सकते हो। लेकिन इतना पंगा क्यों लेना है कि भैया इतना वेट करो, हो सकता है आप ध्यान ना दे पा रहे हो सकता है आप मिस आउट कर रहे हो। तो नेवर इंडल्ज इन कैंसलिंग स्टोरी, ऑलवेज टेक ऑल द थिंग्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन ट्राई टू सॉल्व। जैसा कि हमने वेवी कर्व में भी आपको बार बार कहा है कि कट्टम कुट्टम ना करें। थर्ड, ऑलवेज कीप अ स्ट्रॉन्ग अटेंशन ऑन द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन।
ऑलवेज करेक्ट योर सॉल्यूशन इफ इट डजंट ओबे द डोमेन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। जिस तरीके से आपको स्क्वायर करने के बाद चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, उसी तरीके से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग लॉग जानते हैं, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन जानते हैं, तो आपको पता है लॉग नेगेटिव वैल्यूज की नहीं निकाली जा सकती है, आपको पता है नेगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट नहीं निकाली जा सकती है, आपको पता है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। तो कभी कभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं ना, तो कुछ चीजें ऐसी स्टेप्स होती हैं जिसकी वजह से हम डोमेन को मिस आउट कर जाते हैं ड्यू टू सम अदर स्टेप्स, और आंसर हमारा जो आ जाता है वो हमारे डोमेन को चैलेंज कर रहा होता है, और हम बिना वेरीफाई किए हुए उसका आंसर लिख के चले जाते हैं, जहां पे आपकी नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए आपका जब भी आंसर आए, आप जरूर अपने इक्वेशंस के, ओरिजिनल इक्वेशंस के डोमेन को जरूर ध्यान रखो, खास करके स्क्वायर रूट, लॉग, ये सब जहां पे आपको पता है कि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। जहां जहां डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होता है वहां पे जरूर आपके इक्वेशंस में, अगर वो फंक्शन है जहां पे डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि इररेशनल इक्वेशंस में, लॉग इक्वेशंस में, या आपका डेनोमिनेटर में जीरो होने वाला चीज, तो वो सारी चीजों में आपको रुकना है और आपको फाइनल आंसर्स निकाल के चेक करना है कि कहीं आपके जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके डोमेन को चैलेंज तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है दैट शुड इंटरसेक्ट विद द डोमेन। जो भी पार्ट कॉमन है वो आंसर होगा, जो डोमेन के कॉमन पार्ट में नहीं आता है वो आपका आंसर और सॉल्यूशन नहीं होगा, उसे आप रिजेक्ट करेंगे। Sometimes it is very important for your trigonometric equation. This अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो जनरल इक्वेशंस के लिए थे, ये आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Sometimes your correct answer, I'm telling you your correct answer, I'm not saying telling you your wrong answer. आपने सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व किए हैं और आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। Sometimes your correct answer won't match with the option in the question in case of MCQ or in the answer key of your textbook. ऐसा होगा कि आपने अच्छे से सॉल्व किया, आंसर आ गया, और आंसर जब आपने टेक्स्ट बुक का खोल के देखा तो मैच नहीं किया, या आप जब MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपका चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ये जो आंसर है आपका भी सही है और जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो भी सही है, आपका भी आंसर सही है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी सही है, लेकिन वो जो डिफरेंट आंसर आया उसका रीजन है डिफरेंट अप्रोचेस। हो सकता है आपने पूरी कहानी साइन एक्स में ले जाके साइन एक्स का सॉल्यूशन कर दिया हो, और साइन एक्स का जो जनरल सॉल्यूशन हो आप लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा के फॉर्म में, और हो सकता है बुक में या MCQ में वो सारे क्वेश्चन का जो सॉल्व करके जो सॉल्यूशन है वो cos x के फॉर्म में है, तो उसका आंसर लिखा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है। तो इसलिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसीलिए चैलेंजिंग हो जाता है, खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव सवालों में जाते हैं जहां पे ऑप्शंस आपको पिक करना होता है, तो वहां पे आप पकड़े जा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। आप जो भी अप्रोच लगाएं, आप जो भी आंसर निकाल लें, उसको जरूर मैच करें कि इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, विद विच ऑफ द ऑप्शंस रियली गेट मैचेस विद व्हाट आई हैव फाउंड आउट। तो ये आप धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब बच्चे आप इतना समझ लो कि एक्स्ट्रा ये होगा कि आपके सॉल्यूशन बिल्कुल भी सही है, लेकिन फिर भी आपका आंसर टेक्स्ट बुक के आंसर से या MCQ के ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपने गलत किया है। इसका मतलब है कि आपको जानना होगा कि उसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं आज 6 टाइप्स आपके लिए लाया हूं, उस 6 टाइप्स में क्या करना है उसकी बात करेंगे, और उससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूं, हम उसको सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में देखिए, टाइप 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन। मतलब आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिखेंगे जो बड़े आराम से फैक्टराइज हो रहे हैं, और जब फैक्टराइज बड़े आराम से हो रहे हैं तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व 2 sin स्क्वायर एक्स cos x माइनस cos x इज इक्वल टू 0 वेयर x लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का आंसर नहीं निकालना है, आपको बस 0 से 2 पाई का आंसर निकालना है। मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, बस 0 से 2 पाई के बीच में जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या जो जो सॉल्यूशन है वो बताने हैं। सिंस आपको मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आपको तुरंत हिंट हो गया होगा कि इसको फैक्टराइज करना है। आप जैसा कि देख रहे हो 2 sin स्क्वायर cos x और दूसरा देख रहे हो cos x, दोनों में कॉमन फैक्टर डेफिनेटली cos x देख रहे होगे, तो आपको पता है कि आप 2 sin स्क्वायर x cos x माइनस cos x इक्वल टू 0 को फैक्टर करोगे तो cos x कॉमन निकल के आएगा। आप जब cos x को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos x यहाँ आ जाएगा, और cos x इंटू 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0। तो मतलब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 हो गया है। अब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट cos x और 2 sin स्क्वायर x का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो cos x 0 है
या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल 0 है। अब cos x इक्वल टू 0 को आपको पता है 0 से 2 पाई, अभी हमने देखा था cos x इक्वल टू 0, 0 से 2 पाई में कहाँ कहाँ 0 होता है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो आपने कहा दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। देखा रिजल्ट याद रखने का कितना फायदा है, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आप तुरंत झट से बोलोगे x इक्वल्स पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल 0, इसको आप देखोगे तो आप लिख सकते हो साइन एक्स इज 1 बाई रूट 2 या साइन एक्स इज माइनस 1 बाई रूट 2। आप उसको सीधे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा पे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस आपको आंसर 0 से 2 पाई के बीच में रखना है, तो साइन एक्स अगर 1 बाई रूट 2 है तो क्या क्या आंसर हो सकता है, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। सिंस 0 और पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो एक हो जाएगा 5 पाई बाई 4 और दूसरा हो जाएगा 7 पाई बाई 4। तो ये आपके 4 सॉल्यूशंस, ये आपके 2 सॉल्यूशंस। तो बेसिकली इस इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, टोटल 6 सॉल्यूशन हो गए। एक हो गया पाई बाई 4, दूसरा हो गया पाई बाई 2, तीसरा हो गया 3 पाई बाई 4, चौथा हो गया 3 पाई बाई 2, पांचवा हो गया 5 पाई बाई 4, छठा हो गया 7 पाई बाई 4। सो दीज आर द 6 सॉल्यूशंस ऑफ योर trigonometric equation 2 sin square x cos x minus cos x equals 0 where x belongs to 0 से 2 पाई। अगर x 0 से 2 पाई नहीं दिया होता तो फिर आपको जनरल सॉल्यूशन में सॉल्व आउट करना होता, आपको cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन लिखना होता और 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0 का जनरल सॉल्यूशन लिखना होता, और दोनों जनरल सॉल्यूशन का आपको यूनियन लेना होता। दूसरा सवाल देखते हैं, सेम इसमें फैक्टराइजेशन के ही कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। नाउ दिस लिटिल लुक लाइक इसमें क्या फैक्टर निकालूं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्लास 10 की आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स दोनों साइड कॉमन हो जाएगा। तो मैंने देखिए क्या किया है, सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, राइट हैंड साइड को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। आप देख सकते हैं तो अभी तक हमने 2 ही स्टेप लिया है, तो लेफ्ट साइड को अभी तक अनटच छोड़ा है। 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी क्या गलती करेंगे, यहाँ पे ये और ये करेंगे, बिल्कुल भी ये कट्टम कुट्टम नहीं खेलना है, बिल्कुल भी कट्टम कुट्टम नहीं खेलना है, क्योंकि आप जैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स को कट्टम कुट्टम कर देंगे, आपने 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 का सोल्यूशन ही उड़ा दिया, आपने अपने पार्ट का आंसर ही उड़ा दिया। तो आप क्या करेंगे, आप सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 2 साइन एक्स माइनस कॉस, ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड था। जो राइट हैंड साइड है मैंने राइट में लेफ्ट में वापस ले गया। आप देख सकते हो ये दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, इस दोनों एक्सप्रेशन में 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन है, तो मैंने 1 प्लस एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट था, और 1 माइनस कॉस एक्स राइट हैंड साइड का पार्ट था, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें देख सकते हैं ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद 2 साइन एक्स माइनस 1। तो आपके पास जो फाइनली बचा वो क्या बचा, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब इसमें या तो ये 0 है या तो ये 0 है। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 का आपने लिखा कॉस एक्स इक्वल्स माइनस 1, और इसको आपने लिखा साइन एक्स इक्वल टू हाफ। अब cos x इक्वल टू माइनस 1, अब बताइए cos x इक्वल टू माइनस 1 कहां पे होता है। अगर मैं क्या कहते हैं cos x इक्वल टू माइनस 1 0 से 2 पाई के बीच में देखूं, तो आपको पता है cos x माइनस 1 होता है पाई पे, फिर 3 पाई पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2n प्लस 1 पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। आपको पता है अभी हमने देखा था cos x इक्वल्स टू माइनस 1 का जनरल, जैसा कि अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से ले जाता हूं आपको। क्या जनरल सॉल्यूशन है cos x इक्वल्स माइनस 1 का, x इक्वल्स 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद होने कितने जरूरी हैं अब आपको पता चल रहा होगा। तो बट एट द सेम टाइम याद करने का तरीका क्या है, हमेशा दिमाग में कैलकुलेट करने का। दूसरा क्या है, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी की थी। आप साइन एक्स को क्या हाफ को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 6, साइन 30 डिग्रीज हाफ। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई
x equals to 2n plus 1 pi or n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. So this is your general solution of the equation which we solved just now. So I'm sure आपको फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस को भी समझ में आ रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है. आइए टाइप 2 की बात करते हैं. टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन इजीली बी रिड्यूस्ड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है वो बड़े आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदला जा सकता है. देखिए कैसे. 3 cos square x minus 5 cos x minus 4 equals 0 where x belongs to 0 से 2 pi. अगेन इसमें जनरल सॉल्यूशन का झंझट नहीं है, इसको आप 0 से 2 pi के बीच में ही आपका आंसर छोड़ना है. तो आप देख सकते हो 3 cos square x minus 5 cos x minus 4 है. अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं cos x को क्या बोल सकता हूं? cos x को मैं बोल सकता हूं y. लेट cos x इक्वल्स y. आपने cos x को y बना दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में x क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर आपको याद हो तो उसी तरीके से y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा माइनस b दैट इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 25 माइनस माइनस प्लस 48 बाई 6. सो क्या हो गया? 5 प्लस माइनस रूट 73 बाई 6. तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 73 बाई 6 और y इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 73 बाई 6. y क्या है? y है cos x. तो आप लिख सकते हो cos x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 73 बाई 6 और y इज इक्वल टू 5 सॉरी cos x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 73 बाई 6. ना यहाँ पे आपका रूट 73 है. रूट 73 बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81. 85 का स्क्वायर होता है 72. अगर 8.5 का स्क्वायर आप देखेंगे तो इट इज लाइक 72.25. तो समहाउ आप ये कह सकते हो जो रूट 73 है वो समहाउ इक्वल है 8.5 के. 8.5 से बड़ा ही है लेकिन अभी आप मोटा मोटी मान लो 8.5 के बराबर है. तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको अप्रोक्सीमेट करूं, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं तो क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस 8.5 बाई 6 विच इक्वल्स 13.5 बाई 6 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. सो दिस विल बी रिजेक्टेड क्योंकि cos x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं, आई एम जस्ट अप्रोक्सीमेटिंग to just check, it's not the answer. So what I can say is 5.5 minus 8.5 by 6 is somehow minus 3.5 by 6, which means it is greater than minus 1. This is definitely greater than minus 1. So well, it is very much एक्सेप्टेबल जोन. तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 73 बाई 6. सो ये आ गया. अब मुझे क्या करना है? मुझे ये पता है कि जो cos x है इसका ये जो आंसर है, इसका जो अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालू, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसका अगर मैं कहूं cos अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 73 बाई 6, तो अल्फा डेफिनेटली कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है? अल्फा लाइज बिटवीन, सिंस ये नेगेटिव है तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली अ प्रिंसिपल वैल्यू. सो मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं? अल्फा इज कॉस इनवर्स 5 माइनस रूट 73 बाई 6. तो आप इसको लिख दो कि अल्फा इज कॉस इनवर्स. आप अभी ज्यादा घबराओ मत इस एक्सप्रेशन देखिए. कॉस इनवर्स का मतलब होता है कि कौन से वैल्यू का कॉस ये होता है, उल्टा रिवर्स. जैसे लॉग एक्सपोनेंट का उल्टा होता है वैसे इनवर्स ट्रिक होता है. तो बस आप इस एक्सप्रेशन से घबराइए मत. आप अल्फा को क्या लिख सकते हो? अल्फा को लिख सकते हो कॉस इनवर्स 5 माइनस रूट 73 बाई 6. और ये लाई कहां से करेगा? ये लाई करेगा 0 से पाई के बीच में. सिंस ये नेगेटिव है तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2. तो मैं कह सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos अल्फा. तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन मुझे निकालना है. तो मैं जनरल सॉल्यूशन नहीं, मुझे निकालना है क्या है? 0 से 2 पाई. तो एक आंसर हो जाएगा अल्फा.
और दूसरा आंसर बताओ क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डेफिनेटली 0 से 2 पाई में दो आंसर्स होते हैं, बाउंड्री को छोड़ के अब जब भी बीच होगा तो cos x, तो क्या क्या हो सकता है, एक आंसर हो सकता है अल्फा, दूसरा आंसर क्या हो सकता है 2 पाई माइनस अल्फा। क्या हो सकता है दूसरा आंसर 2 पाई माइनस अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस अल्फा भी सही होगा, क्योंकि cos अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू cos 2 पाई माइनस अल्फा। तो डेफिनेटली इफ आई से अल्फा इज लाइंग बिटवीन 0 से पाई, सो 2 पाई माइनस अल्फा विल आल्सो लाई बिटवीन 0 से 2 पाई, राइट। सो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो आप कह सकते हो कि आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो एक है x इज इक्वल टू अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। इस पे गौर से देखो, ये मैंने क्यों आंसर लिखा, ये आंसर है, बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। अल्फा को क्या होता है, अल्फा इज कॉस इनवर्स 5 माइनस रूट 73/6। ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ ना कुछ, ये जो आंसर होगा ये किसके बीच में लाई करेगा, दिस विल लाई बिटवीन, दिस अल्फा वुड लाई बिटवीन π/2 से पाई के बीच में अल्फा लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं 2 पाई माइनस अल्फा की बात करूं तो 2 पाई माइनस अल्फा कहां से कहां लाई करेगा, सो 2 पाई माइनस अल्फा, अब देखो ऐसे देखो, अगर मैं कह रहा हूं अल्फा π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो दूसरा जो एंगल होगा वो 0 से 2 पाई वाला कौन सा होगा, तो डेफिनेटली वो 2 पाई माइनस अल्फा होगा। इसको देखने का दो तरीका है, एक ऐसे लिख सकते हो कि π/2 इज लाइंग बिटवीन अल्फा से पाई, विच मीन्स माइनस π/2 वुड बी ग्रेटर देन माइनस अल्फा वुड बी ग्रेटर देन माइनस पाई, राइट। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो 2 पाई माइनस π/2, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस पाई। तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि 2 पाई माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 π/2। तो मतलब 2 पाई माइनस अल्फा इज आल्सो लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई। तो आपका दो आंसर होगा, एक आंसर होगा x इज इक्वल टू अल्फा, एक आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। अगर मैं इसको ग्राफ से भी देखूं, अगर मैं इसको ग्राफ से भी दिखाना चाहूं, देखो ग्राफ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, लेट्स से अगर आप इसको ग्राफ से भी समझोगे तो बड़े आराम से ग्राफ से समझ जाओगे। कैसे, देखो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। सिंस 0 से 2 पाई है इसलिए मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट में बना दिया। रेड कर्व से मैं बना रहा हूं आपका cos x ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। मान लीजिए ये आपका cos अल्फा है, cos अल्फा कुछ ये है, दिस इज योर cos अल्फा। सिंस ये नेगेटिव है तो cos अल्फा का अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो डेफिनेटली दो आंसर आएगा, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। ये आंसर आप बोलोगे कि सर ये 0 से पाई के बीच वाला आंसर है, तो ये हो गया अल्फा। ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। अंडरस्टूड। क्यों कहा आपने 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि जितना दूरी ये है, अगर आप गौर से देखोगे, जितना दूर ये है उतना ही दूर ये इधर से है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो 2 पाई से आप लेफ्ट आओगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो आप दो सॉल्यूशन कहोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है इसलिए आपको ये देखना है। तो 2 पाई माइनस अल्फा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगेन आप देखते हैं कि अभी हमने क्या बात की थी कि जो इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x इक्वल्स 3 sin स्क्वायर एक्स, और इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन देना है। तो अगर आप गौर से देखोगे यहां पे है 2, अगर आप गौर से देखोगे यहां पे 2 cos स्क्वायर एक्स है और यहां पे 3 sin स्क्वायर एक्स है और यहां पे cos x है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फंक्शन को टोटल साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं या टोटल कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं या इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं। लेकिन किसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन बताएगा, ये बताएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कॉस एक्स है।
तो ये जो लीनियर टर्म है ये डिफाइन करेगा कि मुझे किस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये पूरा इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो द ओनली बेस्ट अप्रोच वुड बी दैट मैं sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दूं। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है। सिंस ये cos x है तो मुझे अपना जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, sin स्क्वायर एक्स में या cos स्क्वायर एक्स में? तो डेफिनेटली cos स्क्वायर एक्स में। तो मैं इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको लिखूंगा 4 cos x और इसको लिखूंगा 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो अब क्या हो गया, मैंने ये जो इक्वेशन है टोटली cos में ले गया। अब 2 cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज यहाँ पे छोड़ दो, इसको 4 cos x लिख दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। फिर इसको रीअरेंज कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स। क्या बन गया 5 cos स्क्वायर एक्स, ये बन गया 4 cos x और 3 इधर आ गया तो ये बन गया -3। मैंने फिर क्या लिया, y इज इक्वल टू cos x मान लिया, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू cos x। फिर क्या किया मैंने 5y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इक्वल 0। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12 to 60 अपॉन 10। सो आपके पास आंसर क्या आया, -4 प्लस माइनस रूट 76 बाई 10। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एक सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू -4 प्लस रूट 76 बाई 10 और दूसरा है y इज इक्वल टू -4 माइनस रूट 76 बाई 10। अब रूट 76 अगेन इट्स समवेयर 8.7 8.6 है ना। तो अगर मैं 8.7 यहां पे डाल दूं तो ये तो एक्सेप्ट, ये अगर आप इस यहां पे देखो, रूट 76 को मैं कह सकता हूं रूट 76 इज अप्रोक्सीमेटली 8.85 86, यू कैन से 86 87 है ना। तो 8.6 9 से कम होगा, 8.6 मान लो। तो अगर मैं इसको 8.6 माइनस 4 कर दूं तो क्या बन जाता है 4.6 अपॉन 10। तो ये हो गया y is लेस देन 1। ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर इसको मैं देखूं ये हो जाएगा -4 माइनस 8.6 अपॉन 10 विच मीन्स इट इज लेस देन 1। ये क्या हो गया, लेस देन -1 हो गया। क्या बन गया, ये लेस देन -1 हो गया। तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि cos x -1 से छोटा नहीं हो सकता है। सो द ओनली सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल इज दिस। सो आप क्या लिख सकते हो, cos x इक्वल्स -4 प्लस रूट 76 बाई 10। सिंस इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप सीधे कह सकते हो cos अल्फा इज इक्वल टू -4 प्लस रूट 76 बाई 10। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया cos इनवर्स -4 प्लस रूट 76 बाई 10। Since -4 plus root 76 by 10 is a positive quantity lying between 0 से 1, so this will lie between 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। सो इट इज अ वेरी सेफ जोन। एट द सेम टाइम इसमें मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो मुझे पता है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा में। अब मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जनरल सॉल्यूशन में दिमाग लगाना है। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज द आंसर। और क्या लिखोगे, वेयर अल्फा इज cos inverse -4 plus root 76 by 10. So this is like how you are going to handle these type of questions. Now type 3 trigonometric equations which can be solved by transforming a sum or difference of trigonometric ratio into their product. मतलब आपके इक्वेशंस में सम्स के फॉर्म में दे रखा है, सम या डिफरेंस के फॉर्म में दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो आप उसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, टू कन्वर्ट देम इनटू अ प्रोडक्ट फॉर्म, सो दैट प्रोडक्ट फॉर्म बनाने के बाद फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। तो देखिए सवाल क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे sin 2x माइनस sin 4x है।
सिंस ये cos 3x अकेला है तो इसको अकेला छोड़ दो, यहां पे आप sin c माइनस साइन डी लगा सकते हो, sin c माइनस साइन डी। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में व्हाट इज sin c माइनस साइन डी, 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं एज इट इज cos 3x छोड़ दिया, इसको लिख दिया 2 इंटू साइन 2x माइनस 4x बाई टू इंटू कॉस 2x प्लस 4x बाई टू इक्वल्स 0। समझ में आ गया, मैंने साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया। अब ये क्या हो गया, ये बन गया cos 3x प्लस 2, ये क्या बन गया साइन माइनस एक्स, क्या बन गया ये साइन माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी है तो सी माइनस डी बाई टू होगा। सो 2x माइनस 4x इज माइनस 2x, माइनस 2x बाई टू इज माइनस एक्स। और cos क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा 3x। कैसे बन गया, 4x प्लस 2x इज 6x, 6x बाई टू इज 3x इक्वल्स 0। इसमें आप देख रहे हो क्या कॉमन लिया सकता है, cos 3x कॉमन लिया सकता है। cos 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या आया 1 माइनस 2 साइन एक्स। ये कैसे आ गया, साइन माइनस एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स। तो क्या हो गया cos 3x, तो इससे मेरा दो सॉल्यूशन आया, दो पार्ट में बढ़ गया, cos 3x इक्वल 0 या 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल 0। अगर मुझे cos 3x इक्वल 0 है, अभी आप ना 3x को भूल जाओ, अभी आप 3x पे ज्यादा टेंशन मत लो। आप सिंपल सी बात बताओ, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे, 7 पाई बाई टू पे। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3x इक्वल्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स में आप क्या कह सकते हो कि आपका कहानी ये हो गया। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, 3x आपको पता है cos 3x 0 हो रहा है, और cos 3x एक एंगल ही है, तो cos कचड़ा इज इक्वल टू 0, मतलब कचड़ा क्या है, कचड़ा पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू है, 5 पाई बाई टू है, 7 पाई बाई टू है। तो कचड़ा को आप क्या लिख सकते हो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो उसी तरीके से 3x को क्या लिख सकते हो, 3x इक्वल्स 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो आपके पास आया 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। सो दिस इज वन सॉल्यूशन, x इक्वल्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 6। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। सो ये दोनों को आप एज ए यूनियन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके बच्चों, दिस इज हाउ यू कैन लीव योर आंसर, एंड एट द सेम टाइम आपको जनरलाइज करना है, देखना है कि कहां पे ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 6 हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सब चीजों में ना पढ़ के आप सीधे लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6 यूनियन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। तो दिस इज योर आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू देयर सम और डिफरेंस। अब क्या दे रखा है, यहां पे था कि सम और डिफरेंस दिया हुआ है, आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। अब क्या है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दो। देखो क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे है साइन 5x इंटू कॉस 3x, यहां पे साइन 6x इंटू कॉस 2x। अब प्रोडक्ट वाला आइडेंटिटी आई एम श्योर आपको याद होगा, साइन a प्लस बी क्या होता था, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, याद है। और साइन a माइनस बी क्या होता था, याद करो, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, इफ यू रिमेंबर, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं,
लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया तो क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो राइट हैंड साइड ऐड होकर क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये दिख गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज टू साइन ए कॉस बी। तो मैं इसके आगे टू लिख दूं, इसके आगे टू लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x। सेम वे इसको लिख सकता हूं साइन 6x प्लस 2x प्लस साइन 6x माइनस 2x। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने सिंपल सी कहानी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से अच्छे से। तो मैंने इसको लिख दिया टू साइन 5x इंटू कॉस 3x इक्वल्स 2 इंटू साइन 6x इंटू कॉस 2x। तो सिंस आपको पता है टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी को आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x, राइट। उसी तरीके से राइट में आ जाएगा साइन 6x प्लस 2x प्लस साइन 6x माइनस 2x। तो अब देखो क्या हो गया, ये बन गया साइन 8x प्लस साइन 2x इक्वल साइन 8x प्लस साइन 4x। अब देखो इसको यहां से यहां काट सकते हो, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, डिफरेंस वाला। आप जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो आप कह सकते हो साइन 8x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है थ्रू सब्ट्रैक्शन, थ्रू द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, नॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ओके, तो आप इसको यहां से रिमूव कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन 2x इज इक्वल टू साइन 4x। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इसको मैं इधर ले आता हूं साइन 4x माइनस साइन 2x। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो साइन c माइनस साइन डी लगा सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x। बताओ कैसे लिखा मैंने ये, अगर आपको याद हो, मैंने साइन 2 थीटा का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि साइन 4 थीटा इज 2 इंटू साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। यहां से आपने क्या कॉमन निकाल लिया, यहां से आपने साइन 2x कॉमन निकाल लिया। यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल 0। एक क्या हो गया, एक हो गया साइन 2x इक्वल 0, और एक क्या हो गया cos 2x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब बताओ साइन 0 कब होता है, 2x को भूल जाओ, साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू n पाई, 2x इक्वल्स टू n पाई। तो x क्या हो गया, n इंटू पाई बाई 2। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन आप देखिए क्या है, cos 2x इज इक्वल टू हाफ। अब बताओ cos x हाफ कब होता है, किस cos का, किस एंगल का cos हाफ होता है, cos 60 डिग्री। तो आप लिखोगे cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। सो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos x इक्वल टू cos अल्फा। सो x क्या हो गया, x हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, है ना। तो बेसिकली हो गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। This is how the answer can be written. So you can say n pi by 2 or n pi plus pi by 6 और n pi minus pi by 6। आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीका दिखा देता हूं इसको सॉल्व करने का। यहां से मान लीजिए मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया, जस्ट आई एम गिविंग यू दिस हिंट। अब बस चेक करो कि आंसर सेम आएगा कि नहीं। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इंटू कॉस 4x प्लस 2x बाई 2 इक्वल 0। तो क्या हो गया, 2 साइन x इंटू कॉस 3x इक्वल्स 0। तो आपका क्या हो गया, साइन x 0 हो गया और कॉस 3x 0 हो गया। तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू n पाई, और इसको लिख दिया 3x इज इक्वल टू कॉस x 0 कब होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2।
सो x क्या हो गया 2n+1 इंटू पाई बाई 6। तो अब देखो ये दोनों आंसर सही है, लेकिन दोनों आंसर का शक्ल डिफरेंट है। देखो आपके क्या आंसर है n π/2। n π/2 में n पाई अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, जब इवन होगा तो n पाई। अब देख रहे हो डिफरेंट आंसर्स। एक आंसर आपका देखो, ये तीनों दोनों आंसर को चेक करो, ये आंसर आया आपका इस मेथड से। देखो ये दोनों आंसर में कितना फर्क है, जस्ट चेक। दिस इज सेइंग n π/2 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। दिस इज सेइंग n पाई इंटू 2n+1 π/6। ठीक है, तो घबराना नहीं है, दोनों सेम आंसर है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये टेक्स्ट बुक में डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस की वजह से। टाइप 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x इक्वल c। अब आपको पता है कि a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c है, तो आपको पता होगा कि मैंने ये एक्सप्रेशन के बारे में हैंडल करना सिखाया था। a और b अगर आपके sin x से कोफिशिएंट है तो आप एक राइट ट्रायंगल इमेजिन कर लो, जिसमें a को बेस मान लो, b को हाइट मान लो, इसे अल्फा मान लो। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है √a² प्लस b²। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे a² प्लस b² से डिवाइड और यहाँ पे भी a² प्लस b² से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा और ये क्या बन जाएगा साइन अल्फा। ये अगर आपको याद हो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैक्स में निकालने के लिए बताया था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसको अगर सॉल्व करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2। तो मैं जैसा कि देख रहा हूं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं तो ये 1 है, ये 1 है, ये √2 हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशंस को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन एक्स प्लस π/4 इक्वल्स 1। आपको पता है साइन एक्स 1 कब होता है, π/2 पे होता है, फिर रिपीट कब करता है 2n पाई के रिपीट करता है। तो आप लिख सकते हो x प्लस π/4 इक्वल्स 4n+1 इंटू π/2। आपको याद होगा अभी हमने रिजल्ट निकाला था ये वाला। तो आप कह सकते हो x क्या होगा, x होगा 4n+1 इंटू π/2 माइनस π/4। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2 माइनस π/4। तो आप लिख सकते हो 2n पाई प्लस π/4 इज गोइंग टू बी द आंसर। उसी तरीके से इसको और आप यहाँ पे cos π/4 के बदले sin π/4 लिख के cos के फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते थे। उसके अलावा एक और मेथड है जो अभी मैं बात करूंगा। एक और मेथड है, जैसे कि आपको पता है कि ये cos x है, ये sin x है। अब दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है। अब दोनों डिफरेंट रेशियो के सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin 2θ इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2θ इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो, राइट। अब जब आपको पता है sin 2θ के फॉर्म में, तो मैं sin x को क्या लिख सकता हूं, sin x को लिख सकता हूं 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। उसी तरह से cos x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। इसको एक और मेथड बता रहा हूं, जस्ट लिसन टू द मेथड। तो आपने sin x को tan x/2 के फॉर्म में लिख दिया, cos x को भी tan x/2 के फॉर्म में लिख दिया। तो sin x क्या बन गया, sin x बन गया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2
इक्वल्स √2। अब tan x बाई 2 को मैंने मान लिया y, क्या मान लिया y। सो 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2। अब क्या हो गया, अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करके tan x के रिजल्ट से निकाल सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगेन एक और सॉल्व देखते हैं, 4 sin x प्लस 3 cos x इक्वल्स 5। तो सिंपली आपको फिर से एक राइट ट्रायंगल इमेजिन करना पड़ेगा। आपने इमेजिन कर लिया और आपने हाइट मान ली 4, बेस मान लिया 3, ये बन गया 5, इसे कह दिया अल्फा। आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 4/5 sin x प्लस 3/5 cos x इक्वल्स 1। 4/5 को मैंने लिख दिया साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, इसको लिख दिया कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इससे क्या पता चल रहा है, इसको मैंने आइडेंटिटी लगा दी, कॉस एक्स माइनस अल्फा इज 1। अब कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, राइट। कॉस 0 1 होता है, फिर 1 कब हो जाता है, कॉस 2 पाई पे, 4 पाई पे। तो आप लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इज 2n पाई। क्या लिख सकते हैं अल्फा को, x माइनस अल्फा इज 2n पाई। तो x क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज साइन इनवर्स 4/5। आप इसको tan x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप 4 इंटू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स 5। नाउ tan x बाई 2 कैन बी रिटन एज y, तो बन गया 4 इंटू 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 5। अब देखिए आराम से हल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8y प्लस 3 माइनस 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 प्लस 5y स्क्वायर। आप उसको उधर ले जाइए तो बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2 इक्वल्स 0। इसको आप लिख सकते हो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स 0। तो आपके पास क्या आ गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से y निकाल लोगे जो कि बेसिकली tan x बाई 2 होगा, क्योंकि क्या होगा tan x बाई 2 एंड देन यू कैन गेट योर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल इट। टाइप 6 देखते हैं, लास्ट टाइप है, उसके बाद आज का दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आज का असाइनमेंट होगा, मैं कुछ भी अलग से क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, आपको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कर देने हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सवाल हैं वो आपको खत्म कर लेने हैं। दैट इज द असाइनमेंट फॉर टुडे। लास्ट टाइप है वो उसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ sin x प्लस cos x, मतलब आपको कोई पॉलिनोमियल फॉर्म दे रखा है जिसमें sin x प्लस cos x और sin x इंटू cos x एक्सप्रेशन में दिख रहा है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, यहां पे आप देख रहे हो sin x प्लस cos x दिख रहा है और यहां पे sin x इंटू cos x दिख रहा है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, sin x प्लस cos x हो और sin x इंटू cos x हो, आपको पता है इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है आपको पता है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 2 sin x cos x, इफ यू रिमेंबर, राइट। एंड सिमिलरली sin x माइनस cos x का भी रिश्ता है 1 माइनस 2 sin x cos x। तो अगर आपको sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x दिया हुआ है, एट द सेम टाइम उसी एक्सप्रेशन में sin x cos x दिया हुआ है, सो ट्राई टू प्ले ऑन विद दिस रिलेशनशिप व्हिच आई हैव टॉक्ड राइट नाउ। So let's try to solve this problem. After this problem, we'll call it a day. Okay, so this is the last problem of the day. So hang tightly. Okay, so what I'm going to do, I'm going to write sin x plus cos x as y. So I'm going to write sin x plus cos x as y. Sorry. Sin x plus cos x as y.
नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्क्वायर इट अप। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर। आपको पता है ये क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। सो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर। सो आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 1। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, y square minus 1 by 2. So now you got the idea. So 1 sin x plus cos x is y. Sin x plus cos x is y, and so this is the two important results which we have concluded. Now what I can do, I can substitute it. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या बना दे रहा हूं, इसको मैं बना दे रहा हूं y 1 प्लस, और sin x plus cos x क्या है, y square minus 1 by 2. So now I'll just multiply with 2. So this will become 2y equals 2 plus y square minus 1. So क्या हो गया, 2y equals 2 plus, sorry, 2 minus 1 is plus 1, so y square plus 1. So this will become y square minus 2y plus 1 equals 0. Which means y minus 1 का whole square equals 0. Which means y equals 1. What is y? y क्या है, ये आपका y है। so sin x plus cos x equals 1. now this is one another equation which you need to solve. तो यहां से हम यहां पे आए, ठीक है। अब हमने पूरा चीज y को कन्वर्ट कर दिया, अब हमारे पास आ गया sin x plus cos x equals 1. sin x plus cos x equals 1. now I am sure आपको राइट ट्रायंगल इमेजिन करना आता है। सिंस कोफिशिएंट, तो इसे मैंने 1 माना, इसको मैंने 1 माना, तो ये क्या बन गया, ये √2 बन गया, ये बन गया पाई बाई 4। तो मैं इसको 1 बाई √2 मान लिया, ये बन गया 1 बाई √2, और ये बन गया 1 बाई √2, राइट। इसको मैंने लिख दिया कॉस, चलो कॉस, इसको मैंने लिख दिया साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, और इसको लिख दिया कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई √2। तो ये बेसिकली क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स कॉस पाई बाई 4, राइट। तो आपको पता है कॉस कचड़ा इज इक्वल टू कूड़ा क्या होता है, कचड़ा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई कूड़ा। तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस पाई बाई 4 इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो अब आपके पास दो आंसर आया, आपको x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अगर आप देखो तो इसका दो पार्ट बन गया, एक बन गया x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और एक बन गया x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स 2n पाई माइनस पाई बाई 4। इसमें क्या किया मैंने, उसको उधर ले गया, तो बन गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, विच मेक्स इट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। सो दिस इज वन सॉल्यूशन। और इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना, x इज इक्वल टू 2n पाई। सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन। सो दीज टू आर योर solution. So this was the end of the day. So we finished the types of trigonometric equations. The next thing which we are going to do is trigonometric inequations, which is a very small part. And I'm sure since after you have already understood principal solution, principal value and general solution, and you also understood all the types which you need to handle. So I would say trigonometric inequation is something like the theoretical aspect is done. What we are supposed to do is do more problem challenging. The only thing which we are left is trigonometric inequations. So we'll just do it in the next class, and then we'll come up with some problem solving, and then we'll proceed with our course, right? I hope you all are making proper notes. Notes के बारे में I would like to talk to you about note making. Now what I want you to do, I don't want you to make maths notebook, physics notebook, chemistry notebook. Rather you should make trigonometry notebook. You should make basic math notebook. You should make
कोनिक सेक्शन नोटबुक, यू शुड मेक अलजेब्रा नोटबुक। आप समझ रहे हो? नोटबुक बनाने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज नोटबुक बनाओ और रिजल्ट्स को कंपाइल करना शुरू करो। अक्सर जब बच्चे 11th से 12th में जाते हैं तो वो रिजल्ट्स फॉर्मूला 11th का भूलने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 11th भूल चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा ही डिमोटिवेशन आता है। तो उस मोटिवेशन को चार्ज अप रखने के लिए आपको ये रखना है कि आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में अपना नोट्स बना रहे हैं और उसको कंपाइल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं। एट द सेम टाइम हर चैप्टर के नोट जो आप अलग नोटबुक बना रहे हो उसमें बहुत सारे खाली पेजेस छोड़िए, एम्प्टी पेजेस छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारी नई नई लर्निंग होगी पुराने टॉपिक्स की। तो वो आप उस पुराने टॉपिक्स में नए जो जहाँ पे आपने ब्लैंक पेजेस छोड़ रखे हैं वहाँ पे आप ऐड करते जाओगे। तो अभी आपको जो नोटबुक्स बनाने हैं वो सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाने हैं, टॉपिक वाइज नोटबुक बनाने हैं। एग्जैक्टली फिजिक्स के लिए भी अपना मैथ्स, बेसिक मैथ्स का अलग कर लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अलग कर लो, मैकेनिक्स का अलग कर लो, आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तो सबका नोटबुक अलग अलग बना दो। उसी तरीके से केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत वेरिएशंस हैं, स्टेशियोमेट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट है। एट द सेम टाइम आप ऑर्गेनिक में बहुत सारे ब्रांचेस हैं और एट द सेम टाइम इनऑर्गेनिक है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट अगर आप नोटबुक बनाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब लास्ट 1 साल 1.5 साल के बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे, इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल टू रीड bookish language. What would be more beneficial that you are reading your own language? Then only you will be able to remember and recollect fast. Okay, bacho. So let's meet very very soon. And if you guys are having any problem anywhere, just write us an email. Write all your doubts, and we will. I'll be taking your doubts on the video lecture as well, and we'll be conducting Zoom classes also, or any online platform classes where we can help you sort out your doubts. और अगर आपको कहीं पे भी आप क्वेश्चन से फंस रहे हो, feel free to contact प्रमोद सर, feel free to contact अमरजीत सर, feel free to contact आदित्य सर, feel free to contact me. आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ज़रूर सॉल्व करो, शाई फील नहीं करो। ऑनलाइन लर्निंग में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट्स अ टाइम टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। ओके बच्चे लोग, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।